Here I will start with the that is political science, chapter 1, power sharing. Now the power sharing. Actually, students, this picture is telling about something which is uh, the disturbance created in the country, tension created in many of the countries, like in the Sri Lanka and the Belgium. You have the two stories, one of about the Belgium and other is about the Sri Lanka. And these two countries are not the large country as we have in India and other countries like China. So these two countries are very small countries. The first one that is we are going to uh, learn about the Belgium. We are going to look in the Belgium. What type of tension is created in the Belgium, and second is about the Sri Lanka. Then, can you think what type of tension is being created in these two small countries? If you look in our society, what type of differences we are having in our society? Like society, you can take the example of village, a small village. In a small village, there might be a people of the several groups, several castes, several religion. So maybe they have the several ritual and custom. So I'm just talking about the one small village of a state or of a country. So do you think what are those things that indifferences being in the society? First one that has come up about the religion. CION. Yeah. The second one is about caste system. Third one, the main I think I have to say that the main is the language. Language difference. The main is about the language differences, then the religion differences, and the caste differences, and move on further and further. Occupation differences, rich and poor differences. So there are many of the differences in a small society, a small village. But we are talking about the Belgium. Belgium is a small country which is located near the France and I think the France and the Germany, the two of the country. I think yeah, here it is. Yeah, if you look at the map of the European countries, European nation, you can find here is the sea in the ocean, and here is somewhat England, ENG, and here you have at the downward you have France, and if you look at something like that, here is the Belgium and here is Germany. So what happened in the Belgium? If you're talking about the Belgium, there is a tension created all about the language. The language differences. The people who are living in the Belgium have their different languages. The Belgium mainly part of the Belgium were the people who are speaking. I think the Dutch. Dutch are in the majority. Dutch speaker, Dutch speaker are in the majority, and the other one that is the French speaker in are in minority. But the main thing is that the capital, which is the Brussels, Brussels, Brussels is the capital of Belgium. So in the main capital city, Brussels, what happened in the main capital city Brussels? The people are speaking French. More people are speaking French as compared to the Dutch speaker. So overall, if you look in the tension of the Belgium, so if I am going to uh, take a percentage of the speaking people, so Dutch have 59% speaker of the Dutch, and somewhat French speaker is
somewhat 40% in the whole country. But if you look about the Brussels, Brussels has something different. In the Brussels, the capital of the Belgium, here the mainly speaker of the French and in the minority is the Dutch people. So what type of tension is created? Tension is created that there is something the Dutch people are being, politically tortured by the French people, and some there in the place where the Dutch speaker are in the majority, they create tension to the French people. So finally, what happened? They got a solution. And what type of solution? They made a constitution. In that constitution, they made that we should have to look something which is, the threshold line. थ्रेशोल्ड लाइन की कुछ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो हमारे बीच में टेंशन क्रिएट हुई है, ये जो हमारे बीच में डिफरेंसेस ज्यादातर मेनली किन चीजों पर हो जाती है कि डच पीपल चाहेंगे कि पूरे जो क्या नाम है देश है उसमें डच ही बोला जाए, फ्रेंच पीपल चाहेंगे कि पूरा जो देश है उसमें फ्रेंच ही बोला जाए। लाइक एग्जाम्पल, हमारे इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन है, बहुत बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल स्पीकिंग लैंग्वेज तो है नहीं। देयर आर 22 the official language of India, no national language। हम लोग वैसे कह देते हैं कि हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज है, बट हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज आल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज, बट द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द इंडियन स्पीक Hindi because of the two or three states they have the majority, like they have the dense population like Bihar, UP, the Madhya Pradesh, so they have the the majority of the population residing in these of the states. What happens? We can't force our language to the Tamil, to the Kannada, to the Malayalam people like the Kerala। हम अपनी भाषाओं को उनके ऊपर थोप नहीं सकते, नहीं आपको भी हिंदी ही बोलना होगा, या हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वही लैंग्वेज आपको बोलना होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाया, एक फ्रेमवर्क बनाया, कहा गया कि जो लोग जहाँ हैं दो तरीके की लैंग्वेज होगी, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, उसके साथ साथ इंग्लिश जो है वो एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। इंग्लिश सबको समझ में आना चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए इंग्लिश का। मान के चलो कोई मलयालम बोल रहा है तो हम तो हिंदी वाले तो मलयालम नहीं समझेंगे, केरला की भाषा। कोई तमिल बोल रहा है तो हम हिंदी स्पीकर, हम बंगाली स्पीकर तो नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है। तो हिंदी ऐसे मीडियम बना दिया गया कि आपको ऐसे भाषाओं को जो है एक दूसरे को समझ। इनके साथ क्या हुआ, यहाँ पर डच ये थोपना चाह रहे थे कि पूरे देश में हमारा हो जाए, फ्रेंच थोपना चाह रहे थे कि अच्छा ब्रुसेल में तो हमारे ये मेन कैपिटल सिटी जैसे दिल्ली हो गया, उसी तरह इसने कहा कि मेन कैपिटल सिटी में तो फ्रेंच की ज्यादा परसेंटेज है मेन कैपिटल सिटी में। तो इन्होंने सोचा कि नहीं हमारा होगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट बनेगी या कुछ भी बनेगा वो जाके कहाँ बैठता है, मेन कैपिटल सिटी में ही बैठता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिर लोगों को बुलाया और बताया, से बातचीत हुई। उसके बाद इन्होंने एक बीच का लाइन निकाला। वो क्या चीजें थी वो स्टेप्स में आपको बताता हूँ। समझ में आया क्या है? जो लोग जो लेट हो गए हैं मैं उनको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका पावर शेयरिंग चैप्टर है वो मेनली बेस्ड है इस चीज के ऊपर कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के हिसाब से भी हो सकते हैं, उनके बीच में जो है एक थ्रेशहोल्ड, एक कॉपरेशन लाया गया। और उन्हीं टेंशन के ऊपर, पहले उनमें टेंशन थी, यानी एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर अपनी जबान को थोपना चाह रहे थे। तो इन टेंशन, ये किस तरह से पहले टेंशन को दिखाया गया कि कैसे टेंशन हुआ इन लोगों के बीच में, और फिर किस तरह से उसका सोल्यूशन निकला। तो टेंशन क्या हुआ इनके बीच में कि डच स्पीकिंग जो है वो पूरे होल कंट्री में तो ज्यादा थी, फ्रेंच जो है कम थी, जो 1% जो बचता है इसके बाद वो जर्मन स्पीकर, जर्मन जो है 1% है। तो ये टोटली इनका जो है ये प्रोपोर्शन था स्पीकिंग का यहाँ पर बेल्जियम। तो लोगों ने फिर ये जो टेंशन क्रिएट हुआ इनके बीच में लैंग्वेज को लेकर के, उसको खत्म किया, और उसको किस तरह से खत्म किया वो मैं बताता हूँ।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहली चीज़ ये है कि आप बैठिए, बैठ करके कोऑपरेशन वाली बात करिए कि हाँ, कुछ आप इधर से कोऑपरेट करो, कुछ उधर से। लाइक एग्ज़ाम्पल, मेन पूरे होल सिटी में किसका सबसे ज़्यादा था पूरे होल कंट्री में? वो थे डच स्पीकर ज़्यादा थे 59%। लेकिन कैपिटल में किसकी ज़्यादा थी लैंग्वेज जो कम्युनिटी कौन ज़्यादा थे? वो थे फ्रेंच पीपल ब्रसेल्स। तो इन लोगों ने 3 तरीके की गवर्नमेंट बनाई, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट वन, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा जो हमारे यहाँ पर होता है लोकल गवर्नमेंट। और इनके यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट बनी तीसरी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे सेंटर में काम करेगी, ठीक है? पूरे होल नेशन में जिस तरह हम लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कम्युनिटी की जगह हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो ये चाहेगी कि पूरी बातें वो अपनी सोच सकती थी, कौन? डच पीपल। लेकिन डच पीपल ने क्या किया कि जितने पावर, जितने मिनिस्टर सेलेक्ट किए फ्रेंच के उतने ही डच के थे, दोनों इक्वली थे। वही सेम चीज क्या हुआ स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हुआ। स्टेट गवर्नमेंट में भी जितने फ्रेंच पीपल पार्टिसिपेट किए उतने ही डच पीपल भी पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। और चौथी बात आती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई कि कम्युनिटी का मतलब ये है कि डिफरेंट मान के चलिए कि लोग के अंदर डिफरेंसेस थे, एजुकेशन क्या होना चाहिए, रिलीजियस सिस्टम, कस्टम, रिचुअल, इथनिक ग्रुप, इथनिक, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इथनिक? इथनिसिटी। इथनिसिटी होता है कि लोग जो है अपने कल्चर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो और भी लोग करें, या हमारा जो कल्चर फ़ॉलो हो रहा है वो फ़ॉलो होना चाहिए, उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो लोगों का जो है वो इटर्नल लगाव होता है इथनिसिटी, ठीक है? तो इथनिक ग्रुप जो थे, जो छोटे-छोटे क्या नाम है अ, अपने-अपने कास्ट को मानने वाले, अपने-अपने कल्चर को, रिचुअल्स को फ़ॉलो करने वाले जो थे, तो उनका ख़्याल रखा जाए तो उन चीज़ों का ख़्याल कौन गवर्नमेंट रखेगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट रखेगी कि जो भी माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में कौन हो गई? लाइक जर्मन सबसे ज़्यादा, वो 1% है तो सबसे माइनॉरिटी में तो वही हुई। तो माइनॉरिटी ग्रुप का ख़्याल रखा जाएगा, तो उनकी ज़िम्मेदारी सौंप दी गई किसको? कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो कुछ लॉज़ आते थे, तो उन लॉज़ को क्या होता था कि आप कोई डिसीज़न लेना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसीज़न जो लेगी, वो दोनों ही फ्रेंच पीपल से भी और डच पीपल से भी। अगर फ्रेंच पीपल येस कहते हैं, डच पीपल नो कहता है, तो फिर वो नो होगा। यानी दोनों को ही सहमति होगी तभी जाकर के कोई लॉ, कोई कानून यहाँ पर बेल्जियम हो पाएगा। बेल्जियम ने कुछ इस तरीके से अपना जो ये टेंशन था, उसको दूर किया। ठीक है? एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सवाल है क्या उनका? 10th की बुक नहीं है यहाँ पे? ठीक है।
श्रीलंकन इशू। Mostly what we see in any nation who have the democratic government, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, ये डेमोक्रेसी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी, बाय डेमोक्रेसी जो है आपने पढ़ा। ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि जो मेजोरिटेरियन रूल ही होता है। लाइक एग्जाम्पल कि आपके पास लोग हैं, उन्होंने वोट किया, जो पार्टी मेजोरिटी सीट लेकर के आएगी वही पार्टी गवर्नमेंट। तो हमेशा यही होता है कि जो मेजोरिटी है वो क्या करती है, अपने कस्टम्स को, अपने रिचुअल्स को, अपनी एथनिसिटी को माइनॉरिटी पे थोप देती है, या माइनॉरिटी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, वो वहीं की वहीं रुक जाती है। लेकिन बहुत ज्यादातर क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने क्या किया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए। जैसे हमारे यहाँ पर भी है आर्टिकल आपका जो 29 है, 28 है कि माइनॉरिटी की जो है, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन मिले, उनको एजुकेशन सिस्टम में उनका टैक्स हटा दिया गया है। अगर कोई एजुकेशन के लिए बिल्डिंग बनती है माइनॉरिटी के नाम पर तो उनको जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा उस इंस्टीट्यूशन से या उस स्कूल से। तो इस तरह से क्या हुआ कि माइनॉरिटी को एक अलग प्रोटेक्शन मिला। उसे काफी सारे देश थे उस वक्त, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ था नहीं। जैसा अभी हमने किसका देखा, बेल्जियम का देखा कि बेल्जियम के साथ ऐसा था नहीं, लेकिन बाद में जाकर के जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, उसका दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और जिसके अंदर इस तरीके की 3 गवर्नमेंट रखी गई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगली। श्रीलंका के अंदर भी सेम इशू था और श्रीलंका का इशू क्या था कि सिन्हाला स्पीकर जो थे वो सबसे ज्यादा थे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो मेनली क्या है कि लैंग्वेज की वजह से लैंग्वेज डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं हम लोग। स्टोरी भी थी कुछ फ्रांस की थी, एक जगह है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है जो बिल्कुल इधर आपका फ्रांस है, अगर मान के चलिए फ्रांस, यहाँ फ्रांस है तो ऊपर में जर्मनी है, ठीक है, बीच में छोटा सा स्विट्जरलैंड के आसपास कहीं आ जाता है। अगर यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, और आपका नीचे क्या आएगा, इटली है ना, इटली सबसे नीचे है ना, इटली तो समुद्र के किनारे इटली आ जाता है। यहीं कहीं आप पास में जो है ना आपका वो पड़ता है ऑस्ट्रिया। एक है ऑस्ट्रेलिया जो आपका कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर न्यूजीलैंड एक कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री है। एक है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के और फ्रांस का जो मामला था, तो उस वक्त एक लड़ाई हुई थी फ्रांस में और ऑस्ट्रिया के बीच में, और उस वक्त ऑस्ट्रिया पूरा अलग से नहीं था, काफी सारे देश मिलकर के ऑस्ट्रिया को चलाते थे। तो जो यहाँ के लोग थे उन्होंने कहा, फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने कहा कि कभी भी क्या है, लोग तुम्हें बंद कर दें या मार दें, कुछ भी करते, लेकिन अगर तुम जिंदा रहो तो एक चीज अपनी बाकी रखना, वो क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज मत बदलना। अगर कोई तुम्हें पहचानेगा कि तुम कहाँ के हो, वो किस तरह पहचानेगा, दे कैन नो बाय देयर लैंग्वेज। आपके क्या लैंग्वेज है, आपकी क्या भाषा है, आप उसी से पहचाने जाते हैं। तो फ्रेंच स्पीकर अगर फ्रांस बोलेगा तो तुम पहचाना जाएगा कि वो फ्रांसीसी है या फ्रांस का रहने वाला है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना लैंग्वेज के ऊपर इतना ज्यादा टेंशन क्रिएट हुआ है ज्यादातर देशों में। तो अब हम लोग क्या है, श्रीलंका की बात कर रहे हैं, चलिए। तो श्रीलंका की मैपिंग से बताने की जरूरत नहीं है कि श्रीलंका जो है आपका क्या पड़ता है, साउथ में, इंडिया के साउथ में और एशिया के भी साउथ में श्रीलंका पड़ता है। एशिया के भी साउथ में आ गया और इंडिया के भी साउथ में श्रीलंका आ गया। श्रीलंका की जो साइज है वो भी कुछ लगभग क्या नाम है, हरियाणा के बराबर, यानी बहुत छोटा साइज है। हरियाणा से मीन्स ये है कि काफी छोटा, हरियाणा भी छोटा सा है तो श्रीलंका भी काफी छोटा है। लेकिन आप देखेंगे कि अक्सर जो है श्रीलंका वाले काफी ज्यादा मिलते जुलते नजर आते हैं, किनसे, तमिल से। कर्नाटक पीपल, तमिल वाले लोग, उनका जो लैंग्वेज है वो ज्यादातर तमिल से मिलता है। कर्नाटक से उतना नहीं मिलता लेकिन तमिल से ज्यादा मिलता है। तो वहां पर क्या होता था कि कॉलोनियल रूल में जो है, श्रीलंका पर भी कॉलोनियल रूल था। जब हमारे इंडिया में था कॉलोनियल रूल, तो साउथ इंडिया में जब
एक्सपेंड किया रूल, तो श्रीलंका से भी जो है सामान का इधर उधर, लेबर का इधर उधर होना, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि लैंग्वेज चेंजेस होता था। ज्यादातर ये देखा गया कि कॉलोनियल रूल में ही काफी सारे नए लैंग्वेज भी बन करके आ गए। आपका जो एक लैंग्वेज है उर्दू, उर्दू जो हम लोग पढ़ते हैं, उर्दू भी एक लैंग्वेज जो है वो समझ लीजिए कि कॉलोनियल रूल के ही शुरू, उस वक्त से ही शुरू हुआ था उर्दू का। क्या हुआ था कि लैंग्वेज, कुछ लोग हैं यहाँ खास तौर से इंडिया में कि संस्कृत ज्यादा बोली जाती थी। पहले संस्कृत था, उसके अलावा भी आर्यन वार्यन 2-3 भाषाएं मिल करके जो है बोली जाती थी। दिल्ली की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी क्योंकि वहां पर मुगल्स आ गए थे। मुगल्स आने के बाद क्या हुआ कि वहां पर लैंग्वेज आपकी वो हो गई, क्या नाम, पर्शियन। पर्शियन फारसी को कहते हैं, जो ईरानियन लैंग्वेज है, ईरान से आई है वो पर्शियन। तो पर्शियन लैंग्वेज आई, यहाँ पर आपका संस्कृत पहले से था, तो काफी सारे लैंग्वेज को मिल करके एक नई लैंग्वेज बन गई जिसका नाम था उर्दू। और इसकी स्टार्टिंग इस तरह से कॉलोनियल एरा में, जब लोग क्या नाम है कॉलोनियल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सोल्जर्स लिए जा रहे थे गांवों से, हर जगह से उठाए जा रहे थे, तो वो लोग आपस में, कुछ मुगल पीरियड के भी जो बादशाह थे तो उस टाइम के जो कुछ लोग थे तो पर्शियन बोलते थे, तो इन सब के बीच में जो भाषा का लैंग्वेज का चेंज हुआ, उससे एक नई लैंग्वेज निकल के आई। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि हर जगह पर यही होता है लैंग्वेज में कि हर कोई ये चाहता है कि अपने लैंग्वेज को दूसरे के ऊपर थोप सके। चलिए, तो श्रीलंका का कंपोजिशन देखें तो सबसे ज्यादा बोलने वाले थे सिन्हाला, अप्रोक्सीमेटली 74% है सिन्हाला स्पीकर। दूसरे आपके आगे तमिल है ना, श्रीलंकन तमिल, हाँ वही सम पार्ट ऑफ तमिल। और कुछ जो है आपका ये आई थिंक 13 और 18%, हाउ मच इन द बुक शोज, या तमिल स्पीकर 18%। और कुछ जो है आपका श्रीलंकन तमिल भी है, और श्रीलंकन तमिल जो है वो 13% है। अब देखिए, ये प्रोपोर्शन ही शो करता है कि यहाँ पर किसका रूल हो सकता है, कौन रूल करेगा। अगर हम इसकी परसेंटेज ही देखें तो इससे पता चलता है कि मेजिटेरियन रूल अगर देखा जाए श्रीलंका में तो किसकी होगी, सिन्हाला स्पीकर्स की होगी। तो 74% ये बहुत ज्यादा हो गया। हमारे इंडिया में भी अगर देखा जाए तो हिंदी स्पीकर कितने हैं, उतने नहीं होंगे। क्यों? अगर आप हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी कर ले तो नॉन हिंदी जी की मेजोरिटी हो जाएगी, क्योंकि हिंदी स्पीकर कितने हो गए हमारे इंडिया में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और थोड़ा बहुत हरियाणा ले ले, लेकिन हरियाणवी थोड़ी अलग हो जाती है। दिल्ली ले सकते हैं हम, राजस्थान के कुछ पार्ट जो क्या नाम है आपका यूपी से और इससे टच कर रहे हैं, गुजरात के कुछ पार्ट्स, लेकिन उनकी भी लैंग्वेज राजस्थानी और गुजराती अलग हो जाती है। तो अगर हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी भी कर दे तो नॉन हिंदी की मेजोरिटी ज्यादा है, हिंदी की कम है। और हिंदी में भी हिंदी उर्दू मिक्स होकर के बोली जा रही है, इसमें भी नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन शो कर रहा है कि सिन्हाला स्पीकर ही 74% है, बाकी सब जो है लेस देन 25, लेस देन 20 है। तो यहाँ पर मेजोरिटी रूल किसकी होगी, सिन्हाला की होगी। प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं किसी की मेजोरिटी रूल होने के वजह से, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स से इनको नहीं है कुछ, प्रॉब्लम्स किनकी होगी, तमिल को होगी और श्रीलंकन स्पीकर को होगी। क्योंकि जो माइनॉरिटी है उनका ख्याल किसको रखना है, मेजोरिटी को रखना है। एक्चुअली क्या, जो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की कहानी सुना रहा था, ऑस्ट्रेलिया की कहानी में पता है क्या हुआ था कि लोगों को एक एक जो फ्रेंच स्पीकर थे उनको पकड़ पकड़ के मारा गया था। जो फ्रेंच बोलता था वो मर जाता था। और तो लोगों ने क्या किया, फिर वो ऑस्ट्रिया बोलने लगे। ऑस्ट्रियन जो लैंग्वेज है, जो ऑस्ट्रिया की लैंग्वेज है, वो थोड़ी मिक्सअप टाइप की लैंग्वेज है, तो वो बोलना शुरू कर दिया। तो लेकिन इसमें क्या है, अब देख लीजिए, अब कोई भी है तो वो अपना कस्टम, अपना कल्चर, अपना रिचुअल छोड़ेगा नहीं। तो इसके लिए इसके अंदर भी यही टेंशन शुरू हुई, लैंग्वेज की वजह से टेंशन क्रिएट हुई कि कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी और क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। एक तो लैंग्वेज डिफरेंसेस भी है इसके अंदर, दूसरा डिफरेंसेस क्या हो गया आपका, रिलीजन डिफरेंसेस भी हैं।
यहाँ पर हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, और कुछ परसेंट जो है आपका क्रिश्चियंस भी हैं। रिलीजन डिफरेंसेस भी हैं। देखिए सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि जहां पर डिफरेंसेस हो वहां पर क्या होना चाहिए कि जो माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं उनको राइट्स मिल जाना चाहिए। लाइक हमारे इंडिया नेशन में है ना कि डिफरेंसेस हैं काफी। सबसे ज्यादा अगर डिफरेंस कोई भी अगर स्टेट है, दो तरीके के स्टेट्स हो जाते हैं। पहला स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में हमेशा स्टेट जो है वो किसको कहते हैं, हमेशा याद रखना, कंट्री को स्टेट कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में। अब कंट्री का मतलब क्या होता है, गांव, गांव को कंट्री कहते हैं। उनके इंग्लिश में जो है ना गांव कंट्री कहते हैं। तो जो भी जो स्टेट्स हैं, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंसेस पाने वाली स्टेट क्या होगी, वो हमारी इंडिया है। हर तरीके के डिफरेंसेस है इसके अंदर। रिलीजन, रीजन यानी इलाका। आप देख लीजिए, आप मॉनसून इलाका आप देख लीजिए तो मुंबई की तरफ से शुरू हो जाता है। आप शिलोंग देख लीजिए, वहां हमेशा बारिश होती रहती है। कश्मीर देख लीजिए, हमेशा ठंडा है। राजस्थान देख लीजिए, जहाँ क्या नाम है, पानी की कमी है, धूप ही धूप है, डिजर्ट इलाका है। तो रिलीजन के हिसाब से भी अलग है कि मजहब अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम और काफी सारी और रिलीजन है। उसके साथ साथ रीजन के हिसाब से भी अलग है कि सबका जो इलाका है, सबका जो जगह है वो अलग अलग है। उसके साथ साथ रिसोर्सेज में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज तो है ही है। तो इन सारी चीजों को इकट्ठा कैसे किया जाए, तो इकट्ठा करने के लिए क्या होगा, एक कानून बनाना पड़ेगा जिसके जरिए क्या होगा कि माइनॉरिटी का जो राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि माइनॉरिटी क्लास में अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, या माइनॉरिटी क्लास में आपका क्या, माइनॉरिटी किसके बेसिस पे होता है, मैं आपको बता दूं। माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे होता है। आपका कोई देश है, इंडिया एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इंडिया में जो है सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म की है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका मुस्लिम्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है क्रिश्चियन, पारसीज, है ना, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, सिखिज्म, तो ये सारी चीजें जो है आ जाती है उसके बाद। तो जो अबव 50% होगा, अबव 50% होगा उसको क्या कहेंगे हम, मेजोरिटी कहेंगे। और 50% से जो भी बिलो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी। चाहे वो 1% हो, चाहे वो 49% हो। बिलो 50% वो आपका माइनॉरिटी में गिनाता है, और अबव 50% वो आपका मेजोरिटी में। तो ये सारी माइनॉरिटी में आ जाएगी। इसके हिंदू के अलावा जो भी रिलीजन है सब माइनॉरिटी में आएगा। तो माइनॉरिटी के लिए कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं जो कि हर जगह की कॉन्स्टिट्यूशन देती है, और जहां पर नहीं देती है वहां पर इस तरीके का बेल्जियम और श्रीलंका के जैसा टेंशन शुरू हो जाता है। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है क्या? नो क्वेश्चन, ओके। हेलो। हाँ हेलो पूछिए, पूछिए जो सवाल। सर, ये जो श्रीलंकन तमिल सर सो भी तो सर तमिल से के ना सर 18% में आ जाते हैं। क्या सवाल है आप? हेलो। हाँ पूछिए पूछिए, फिर से पूछिए। ये जो श्रीलंकन तमिल सर सो भी तो तमिल सी के परसेंटेज में आ जाते हैं ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो हेलो। श्रीलंकन तमिल्स हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो तमिल के ही परसेंटेज में आ जाते हैं? सुनिए, राजीव गांधी के का नाम सुना है आपने? राजीव गांधी, जिसका क्या नाम है, एक्सीडेंटल मौत हुई थी, डेथ हुआ था उसका। जो तमिलियन है वो इंडियन तमिल है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि जो कॉलोनियल इरा था, आपका आपके बुक में दिया होगा कि जो कॉलोनियल इरा था उस टाइम में क्या हुआ था कि कुछ लोग मूव किए थे इंडिया से, कहा, श्रीलंका की तरफ। ठीक है।
In colonial period, या फिर से पूछिए क्या कह रहे हैं? सर इन कॉलोनियल पीरियड जो से इस श्रीलंका की ओर ये किए थे। अब क्या आवाज समझ में नहीं आ रही है? दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। इन कॉलोनियल पीरियड में सर श्रीलंका की तरफ मूव हुए थे। बहुत सारे वर्कर का चेंजेस हो रहा था, एक्सचेंज कर रहे थे। लाइक एग्जांपल जो तमिल वर्कर्स थे, एक्चुअली में जिस वक्त जो इंडिया में कॉलोनियल रूल आया था उसके साथ साथ श्रीलंका में भी कॉलोनियल रूल था, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जो श्रीलंका के कुछ लोग थे उनको इंडिया बुलाया जा रहा था, जो इंडिया के लोग थे वो श्रीलंका जा रहे थे। तो उसमें कौन से लोग थे? ज्यादातर जो तमिलियन स्पीकर थे। और यहाँ पर श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंकन तमिल उनको कहा गया कि जो नेटिव तो श्रीलंका के हैं लेकिन स्पीकिंग क्या है उनकी? तमिल है, इसीलिए उनको श्रीलंकन तमिल किया जाता है। और जो तमिल तमिल पीपल है वो इंडियन नेटिव्स हैं, लेकिन वो जो है तमिल ही बोलते हैं थे वहां पे, और तमिलनाडु के ही रहने वाले थे। तो कॉलोनियल एरा में उनका चेंज हुआ था, इस वजह से उनको अलग कैटेगरी में रखा गया था और इनको अलग कैटेगरी में रखा गया। अंडरस्टैंड? समझे कि कोई और सवाल था आपका? सॉल्व। हाँ पूछिए। I have no any questions, sir. क्या? I have no any questions, sir. Okay, solve. क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है। मैं जो हूँ फिर अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि श्रीलंका का जो इश्यूज था वो किस तरीके से, क्या नाम है, सिन्हाला जो है वो वेजिटेरियन रूल पे आ गई और उनकी जो लैंग्वेज है उसको ओवरऑल माना गया और पूरे श्रीलंका में दिया गया। और इनकी जो लैंग्वेज है तमिल को जो है वहां पर क्या जगह मिली, कैसे जगह मिली, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या फ्रेमवर्क आया तमिल का, और श्रीलंकन तमिल के साथ क्या हुआ, तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके।